إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 8 کی مشق سے پہلے اس سبق کی دہرائی کر لیں۔ مرکب اضافی وہ مرکب ہوتا ہے جس میں ایک اسم کی نسبت دوسری اسم کی طرف کی جائے۔ جس اسم کی نسبت کی جائے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف نسبت کی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے شروع میں نہ ال آ سکتا ہے اور نہ اس کے آخر میں تنوین، اور اگر نون گروپ یعنی تثنیہ و جمع مذکر سالم مضاف بن رہے ہوں تو ان دونوں کا نون بھی گر جاتا ہے۔ اور مضاف الیہ کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ پھر ہم نے ایک اور بات پڑھی تھی کہ اگر کوئی اسم بیک وقت مضاف بھی بن رہا ہو اور مضاف الیہ بھی، تو پھر اس پر دونوں کے قانون لاگو ہوتے ہیں۔ مثلا رسول اللہ، اللہ کا رسول، اس میں رسول مضاف ہے اور اللہ لفظ اللہ مضاف الیہ۔ اور اگر اب کہا جائے بنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی بیٹی، تو یہاں رسول مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی۔ تو اس طرح رسول کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت میں یہ مضاف ہے اور ایک حیثیت میں مضاف الیہ، اللہ کے رسول کی بیٹی۔ تو اب رسول پر دونوں کے قانون لاگو ہوں گے۔ مضاف کا قانون ہے کہ نہ ال آئے نہ تنوین، اور مضاف الیہ کا قانون ہے کہ حالت جر میں ہو، اس لیے رسول پر نہ ال آئے گا نہ تنوین، اور یہ حالت جر میں بھی ہوگا کیونکہ یہ مضاف الیہ بھی ہے۔ تو اس طرح رسول اللہ، اللہ کے رسول، رسول مضاف ہے، لیکن بنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی بیٹی۔ اور اگر میں کہوں اسم بنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی بیٹی کا نام، تو اس طرح بعض اوقات بعض اسم ایک ہی وقت میں مضاف بھی ہوتے ہیں مضاف الیہ بھی۔ تو ایسا اسم جو ہوتا ہے یاد رکھیے کہ اس پر دونوں کے قانون لاگو ہوتے ہیں۔ اب ہم اس سبق کی مشق کریں گے۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل مرکبات اضافی کا اردو میں ترجمہ کریں اور مضاف اور مضاف الیہ کی نشاندہی کریں۔ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جب مرکب اضافی کا ترجمہ کرتے ہیں تو جو لفظ مضاف بن رہا ہو اردو ترجمہ کرتے ہوئے اسے بعد میں استعمال کرتے ہیں، اور جو مضاف الیہ بن رہا ہو اسے پہلے استعمال کرتے ہیں۔ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، یہاں رحمت مضاف ہے اور لفظ اللہ مضاف الیہ۔ نصر اللہ، اللہ کی مدد، یہاں نصر مضاف ہے اور لفظ اللہ مضاف الیہ۔ یوم القیامتی، قیامت کا دن، یہاں یوم مضاف ہے اور القیامتی مضاف الیہ۔ صلاۃ الفجر، فجر کی نماز، یہاں صلاۃ
मुदाफ है और अल फज्र मुदाफ इलैहि है। सवाबुल आखिरती, आखरत का सवाब, यहाँ सवाब मुदाफ है और अल आखिरती मुदाफ इलैहि। रब्बुल मशरिकैनी, दो मशरिकों का रब, यहाँ रब मुदाफ है और अल मशरिकैन मुदाफ इलैहि है। यहाँ अल मशरिकैनी में या नून है, जबकि तस्निया की असल हालत अलिफ नून होती है। ये या नून क्यों हो गया है? क्योंकि मुदाफ इलैहि हालत जर में होता है और अलिफ नून को हालत जर में या नून कर देते हैं, तो ये मशरिकानी से मशरिकैनी हो गया, क्योंकि ये मुदाफ इलैहि है। बैन अल बहरैनी, दो समुंदरों के दरमियान, बैना मुदाफ है और अल बहरैनी मुदाफ इलैहि। जज़ाउल काफिरीना, काफरों की सज़ा, जज़ा मुदाफ है और अल काफिरीना मुदाफ इलैहि। अस्हाबुल जन्नती, जन्नत वाले, अस्हाब मुदाफ है और अल जन्नती मुदाफ इलैहि है। आयातुल्लाही, यहाँ आयात मुदाफ है और लफ्ज़ अल्लाह मुदाफ इलैहि है। अबवाबुस समाई, अबवाब मुदाफ है और अस्समाई मुदाफ इलैहि है। यही वजह है कि मुदाफ इलैहि के आखिर पर जर है, हालत जर में है, क्योंकि मुदाफ इलैहि हमेशा हालत जर में होता है। साहिबा अस्सिजनी, इसको पढ़ेंगे साहिबस सिजनी, कैद के दो साथी। यहाँ मैंने दो क्यों कहा? दरअसल ये साहिबानी था। नून इसलिए गिर गया कि मुदाफ अगर तस्निया हो तो उसका नून गिर जाता है। यदा अबी लहबिन, ये भी असल में यदानी था, क्योंकि ये लफ्ज़ मुदाफ है तो इसलिए तस्निया का नून यहाँ गिर गया है। सवाल नंबर 2, तस्हीह करें अन्नाक़तुल्लाही, ये गलत है क्योंकि मुदाफ पर अल नहीं आ सकता, यहाँ अल आया हुआ है। सही है नाक़तुल्लाही। मस्जिदुल मुस्लिमूना, यहाँ मस्जिद मुदाफ है और अल मुस्लिमूना मुदाफ इलैहि है और मुदाफ इलैहि हमेशा हालत जर में होता है और यहाँ हालत रफ़ा है, लिहाजा इसको दुरुस्त करेंगे मस्जिदुल मुस्लिमीना। नूरुस समावातु, नूर मुदाफ है, अस्समावातु ये मुदाफ इलैहि है और मुदाफ इलैहि को हालत जर में होना चाहिए, लिहाजा ये होगा नूरुस समावाती। अज़्ज़िक्रुल्लाही, यहाँ मुदाफ पर अल आया हुआ है, जबकि मुदाफ के शुरू में अल लाना दुरुस्त नहीं होता। किताबुल वलदानी, यहाँ मुदाफ इलैहि की हालत रफ़ा लिखी हुई है, जबकि अल वलदैनी यानी हालत जर यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि मुदाफ इलैहि की हालत जर होती है। गुरफतानिल बैती, घर के दो दरवाज़े, यहाँ मुदाफ से नून को नहीं गिराया गया, जबकि जब भी तस्निया मुदाफ होता है तो नून को गिरा दिया जाता है। मुशरिकून अल अरब, मुशरिकून अल अरबी,
यहाँ पर भी मुदाफ से वाव नून में नून को नहीं गिराया गया, जबकि जब भी जमा मुदक्कर सालिम मुदाफ होता है उसके नून को गिरा दिया जाता है, अलबत्ता वाव बाकी रहता है और उधर तस्निया में अलिफ बाकी रहता है। तो ये हो जाएगा मुशरिकुल अरबी। सवाल नंबर 3, मंदरजा ज़ैल में मुरक्कब तौसीफ़ी और मुरक्कब इज़ाफ़ी को अलग अलग करें। एक बात याद रखिए, मुरक्कब तौसीफ़ी में एक इसम दूसरे इसम का वसफ़ बयान करता है, चाहे वो अच्छा वसफ़ हो या बुरा वसफ़ हो। और मुरक्कब इज़ाफ़ी में एक इसम की निस्बत दूसरे इसम की तरफ की जाती है। मुरक्कब तौसीफ़ी की ये निशानी होती है कि उसके दोनों जुज़ जिन्स में, अदद में, वसत में और एराब में एक जैसे होते हैं, जबकि मुरक्कब इज़ाफ़ी की ये निशानी होती है कि उसके पहले जुज़ के शुरू में ना अल आ सकता है ना आखिर पर तनवीन, और मुदाफ़ इलैह के आखिर में हालत जर होती है। तो रसूलुल्लाही, यहाँ रसूल मुदाफ़ है, लफ्ज़ अल्लाह मुदाफ़ इलैह है, इसलिए ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। अद्दीनुल हक़्क़ु, यहाँ दोनों जुज़ एक जैसे हैं तो ये मुरक्कब तौसीफ़ी है और इसमें वसफ़ भी पाया जाता है, सच्चा दीन। आयातिन बय्यिनातिन, वाज़ेह आयात, ये भी मुरक्कब तौसीफ़ी है कि इसके दोनों जुज़ एक जैसे हैं। ज़ीनतुल्लाही, अल्लाह की ज़ीनत, इसमें एक इसम की निस्बत दूसरे इसम की तरफ की जा रही है तो ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। अज़ाबन शदीदन, ये मुरक्कब तौसीफ़ी है क्योंकि इसके दोनों जुज़ एक जैसे हैं और एक इसम दूसरे इसम का वसफ़ बयान कर रहा है। नारुल्लाही, अल्लाह की आग, यहाँ नार या आग की निस्बत लफ्ज़ अल्लाह की तरफ की जा रही है तो ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। बैतुल वलदैनी, दो लड़कों का घर, तो यहाँ बैत की निस्बत की जा रही है अल वलदैन की तरफ, लिहाजा ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। अजरुल मुहसिनीना, नेकी करने वालों का अजर, यहाँ पर भी अजर की निस्बत की जा रही है मुहसिनीन की तरफ तो ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। शायद आप सोच रहे हों कि अल मुहसिनीन मुदाफ़ इलैह है तो मुदाफ़ इलैह तो हालत जर में होता है जबकि नून पर ज़बर है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि नून ग्रुप जब भी आपके सामने आए आप समझ लें कि यहाँ हरकत नहीं देखनी, हरकत वाली ऐनक को उतार कर हर्फ वाली ऐनक से देखना है। जब हम हर्फ वाली ऐनक लगा कर देखेंगे तो हमें नून की ज़बर की बजाय या नज़र आएगी। जब या नज़र आएगी तो फिर ये या नून हालत जर, मुहसिनून से मुहसिनीन हालत जर है जबकि मुदाफ़ इलैह हालत जर में होता है। अल मुस्लिमून अस्सालिहून, नेक मुसलमान, ये दोनों इसम एक जैसे हैं और दूसरा इसम पहले इसम की सिफत बयान कर रहा है, लिहाजा ये मुरक्कब तौसीफ़ी है। रिज़्क़ुन तय्यिबुन, पाकीज़ा रिज़्क़, ये भी दोनों इसम एक जैसे हैं, मुरक्कब तौसीफ़ी है। अब्दानी सालिहानी, ये भी दो इसम एक जैसे हैं, दोनों ही तस्निया है, दोनों ही हालत रफ़ा में हैं, दोनों ही नकिरा हैं,
दोनों ही मुज़क्कर हैं तो ये मुरक्कब तौसीफ़ी की अलामात इसमें पाई जाती हैं, लिहाजा ये मुरक्कब तौसीफ़ी है। अल इबादुल मुमिनूना, ये भी मुरक्कब तौसीफ़ी है क्योंकि अल इबादु भी जमा है, अल मुमिनूना भी जमा है। अल इबादु भी हालत रफ़ा में है, अल मुमिनूना भी हालत रफ़ा में है। और अल इबादु भी मुज़क्कर है, अल मुमिनूना भी मुज़क्कर है। अल इबादु भी मारिफा है, अल मुमिनूना भी मारिफा है। इस तरह ये भी मुरक्कब तौसीफ़ी है। अज़ाबुल आखिरती, आखरत का अज़ाब, इसमें एक इसम की निस्बत दूसरे इसम की तरफ की गई है। अज़ाब अल आखिरती, अज़ाब की निस्बत आखिरत की तरफ की गई है, तो ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। सवाल नंबर 4, मंदरजा झैल नाक़िस उर्दू मुरक्कबात का अरबी में तर्जमा करें। 2 नई किताबें, किताबानी जदीदानी, किताबों की कीमत, समनुल कुतुबी, किताबों क्योंकि जमा है इसलिए मुज़ाफ़ इलैह को हमने जमा रखना है। समनुल कुतुबी, लड़के का नाम, इस्मुल वलदी, पुराना कलम, अल कलमुल कदीम, घर का दरवाज़ा, बाबुल बैती, कुरान की समझ, फ़हमुल कुरानी, लड़कियों का मदरसा, मदरसतुल बनाती, नेक औरत, अल मरअतुस सालिहतु, ये मुरक्कब तौसीफ़ी है क्योंकि इसमें एक इसम दूसरे इसम का वसफ़ बयान कर रहा है। कमरे की दीवार, जिदारुल गुरफती, इसमें जिदार मुज़ाफ़ है और अल गुरफती मुज़ाफ़ इलैहि है। यही वजह है कि जिदार के शुरू में अल और तनवीन आखिर पर नहीं आई है और अल गुरफती के आखिर पर ज़ेर है क्योंकि ये मुज़ाफ़ इलैहि है और मुज़ाफ़ इलैहि हमेशा हालत जर में होता है। खूबसूरत घड़ी, अस्साअतुल जमीलतु, अस्साअतु मौसूफ है और अल जमीलतु ये उसकी सिफत है। अस्साअतु क्योंकि मुअन्नस है तो अल जमीलतु भी मुअन्नस है। अस्साअतु मारिफा है तो अल जमीलतु भी मारिफा है। अस्साअतु वाहिद है तो अल जमीलतु भी वाहिद है। अस्साअतु हालत रफ़ा में है तो अल जमीलतु भी उसी तरह हालत रफ़ा में है। क्योंकि मुरक्कब तौसीफ़ी के दोनों जुज़ हमेशा जिन्स, आदद, वुसअत और एराब में एक जैसे होते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा। क्योंकि मुरक्कब तौसीफ़ी के दोनों जुज़ मौसूफ़ और सिफत एक जैसे होते हैं, जिन्स में, अदद में, वुसअत में और एराब में, इसलिए ये चारों चीज़ों में एक दूसरे के मुताबिक हैं। तो हम कहेंगे अस्साअतुल जमीलतु, खूबसूरत घड़ी। मशक के बाद अब एक दो बातें ज़हन में रखिएगा कि मुरक्कब इज़ाफ़ी में अमूमन तर्जमा करते हुए उर्दू ज़ुबान में का, के, की तकरीबन ज़रूर आता है। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा
کہ یہ مرکب اضافی ہے، کا کے کی، اور مضاف الیہ عموماً معرفہ ہوتا ہے اور حالت جر میں ہوتا ہے۔ یہاں سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مضاف الیہ معرفہ ہے اور حالت جر میں ہے، تو یہ یقیناً مضاف الیہ ہے۔ اور مرکب توصیفی میں نے عرض کیا کہ اس کے دونوں جز ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک جیسے لگ نہیں رہے ہوتے۔ مثلا الرجال الصالحون، الرجال حالت رفع نظر آ رہی ہے کہ پیش ہے، صالحون الصالحون پر پیش نظر نہیں آ رہی، لیکن یہاں آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ یہ نون گروپ ہے اور نون گروپ کی حالت رفع واو نون کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہ حالت رفع ہی ہے، لہٰذا الرجال الصالحون یہ دونوں کی حالت رفع ہے۔ تو مرکب توصیفی کی پہچان کیا ہے کہ دونوں اسم ایک جیسے ہوں گے اور ایک اسم دوسرے اسم کا وصف بیان کر رہا ہوگا، یہاں ترجمے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور مرکب اضافی کی پہچان یہ ہے کہ اردو ترجمہ کرتے ہوئے عموماً کا کے کی آتا ہے، اور مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ عموماً زیادہ تر جو ہے وہ معرفہ اور حالت جر میں ہمیشہ ہوتا ہے، معرفہ عموماً اور حالت جر میں ہمیشہ ہوتا ہے۔ تو یہ دو باتیں آپ یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔